देखिए, द टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब क्या है कि बेसिकली आप उसकी डोमेन में एक नेचर नहीं है ना। आई एम राइटिंग दैट इज टॉपिक इज separating the intervals of monotonicity of non monotonic functions। हमने मोनोटोनिक फंक्शन क्या बताए थे? द फंक्शन विच आर आइदर इंक्रीजिंग or decreasing, they have the only one nature, that is mono nature। Okay, so my first question is, let us consider one simple problem. Suppose our fx is some polynomial function, that is minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1। मेरा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप जानते हैं पोलिनोमियल की डोमेन आर होती है, तो पूरे आर पे तो ये फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते हैं ना। तो बेसिकली ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, बट हम मोनोटोनिसिटी के इंटरवल्स निकालेंगे जिस इंटरवल में इसका एक ही नेचर होगा। ओके, तो हम कैसे करते हैं जरा आराम से समझिए। फर्स्ट फाइंड इट्स डेरिवेटिव f dash x, so you will be having minus 6x square minus 18x minus 12, is that okay? We can take minus 6 common, so we have x square plus 3x plus 2। Now we can split the middle terms, x plus 1 x plus 2। Now the critical points are minus 1 and minus 2, and then we'll use the sign scheme method, minus infinity to plus infinity, so we have minus 2 minus 1। So I'm beginning with the on the right side of minus 1, so if I substitute say any value, say on the right side of minus 1, so if I say consider 0, then the sign is negative, then positive, then negative, is that okay beta? Please tell me beta। So where is the function decreasing? The function is decreasing where the negative sign appear। ओपन इंटरवल्स और वैसे भी ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। एंड वेयर इट इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस 2 टू माइनस 1, इट इज इंक्रीजिंग, इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको? Yes. सिंपल। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद सिंपल प्रॉब्लम। वन मोर प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज योर एफ एक्स इज x square into e raised to power minus x। Now, how will find the intervals where this function is increasing or decreasing? So simply differentiate it. It is 2x e raised to power minus x minus x square into e raised to power minus x। Now we can have x e raised to power minus x common, so 2 minus x। Now can you tell me what are the critical points? क्या क्या आएंगे critical points? एक तो 0 आएगा और एक 2 आएगा, so 0 and 2। And we know that exponential function is throughout positive in its domain। Okay, on the right side of 2, if I take any value, then it will be negative, positive, negative। So clearly you can say that the function is increasing on this interval, open interval 0 to 2, that is in fact it is a strictly increasing। Okay, वैसे मैंने पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि फंक्शन नॉर्मली सारे के सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं जब तक कि जो डिस्क्रीट पॉइंट्स है वो इंटरवल नहीं बनाते हैं, ठीक है? अदरवाइज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप इट इज क्लियर बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. Okay, now we have another question। Suppose my question is fx is equals to x raised to power x। Can you tell me what will be the domain of this? But obvious domain has to be r plus। याद करिए हमने एक्सपोनेंशियल में बताया था कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट इज x मस्ट बी पॉजिटिव हियर। ओके, so now what is f dash x of this? This is x raised to power x into 1 plus log x, is that okay? पता है ना सबको, ये डेरिवेटिव आता है इसका। ओके, अब हमें इंटरवल सेपरेट करने हैं,
So but obvious we know that this quantity is always positive, this can't be 0. So 1 plus log base e of x is equals to 0. So we should write log base e of x is equals to minus 1. So x is equals to e raised to power minus 1, that is 1 by e. Is that okay? Please do reply. Okay. Now we'll find the sign of this expression. Okay. This is 0. This is 1 by e. अब मुझे साइन कन्वेंशन देखना है, तो मैं साइन कन्वेंशन कैसे देखूंगा वो जरा ध्यान से देखिएगा. 1 बाई ई सर्टेनली 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है. तो अगर मैं सपोज करिए इफ आई सब्स्टिट्यूट 1, अगर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, log 1 is 0, then certainly it is positive here and it will be negative here. Are you getting this? We will not go in that side. Why? Because domain is r plus. So clearly you can say that the function is increasing on 1 by e to infinity and decreasing on this 0 to 1 by e. Is that okay beta? Please tell me. Clear hai beta? हाँ जी. Is it clear? Okay. Now we have the next question. Suppose my function is fx is equals to log base ex square plus log base e of x, and certainly x is positive. Now the question is separate the intervals where this function is increasing or decreasing. तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. Now what is f dash x? 2 log base e of x over x plus 1 by x. Is that okay? Now if I take the LCM, so we have 2 log base e of x plus 1 over x is equals to 0. So now when it is 0, that is 2 log base e of x plus 1 is 0. So I should write log base e of x is equals to minus half. So I should write x is equals to e raised to power minus half. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Now we'll check the sign. E raised to power minus half is somewhat here, and on the right side of this, if I put x is equals to 1, x equals to 1. Now what will be the sign? Log 1 is 0, so it is positive and negative. So then how we should write here? The function is increasing from where to where? E raised to power minus half to infinity, and decreasing from where to where? 0 to e raised to power minus half. प्लीज रिस्ट्रिक्ट टू टिल 0. हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज अदरवाइज log x की डोमेन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. क्लियर है बेटा? हाँ जी. इज इट ओके? क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी. यस सर क्लियर है. ओके. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. fx दे रखा है 2 raised to power x minus 1 into 2 raised to power x minus 2 whole square. इसके इंटरवल सेपरेट करने हैं कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा. तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x log a. यही है ना? पढ़ा होगा ना? ओके. सो आई विल बी यूजिंग हियर फर्स्ट प्रोडक्ट रूल f डैश x. तो पहले इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. वी विल बी हैविंग 2 रेज टू पावर x log बेस e ऑफ 2. इज दैट ओके? हाँ जी बेटा. क्लियर है वाली बात? इनटू 2 रेज टू पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 raised to power x minus 1 as it is. Then first we will do the differentiation of the power. We will be using chain rule, and then we have 2 raised to power x log 2. Is that okay? Please tell me. Can we have something, some terms are common? Yes, we have. The common terms are 2 raised to power x log base e of 2 and 2 raised to power x minus 2. Is that okay beta? Please tell me. हाँ जी. यही टर्म हमारे पास कॉमन आएंगी. बोलिए बेटा. हाँ जी.
Yes. तो वी हैव 2 रेज टू पावर x माइनस 2, यहाँ से ये बच जाएगा, प्लस वी विल बी हैविंग 2 times of 2 raised to power x minus 1. I hope these are the terms. So we have 2 raised to power x log base e of 2. So we will be having 3 times of 2 raised to power x minus 4. Now let us solve for the critical points. What are the critical points? ये टर्म तो जीरो नहीं होगी, 2 रेज टू पावर x माइनस 2, या तो ये जीरो होगा या फिर वी विल बी हैविंग 3 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो. सो नाउ अगर इसको सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 1, एक तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया. यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 4/3. कैन वी से दैट माई x इज log बेस 2 ऑफ 4/3. ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. अब हमें ये एक डिसीजन लेना होगा, 1 बड़ा है या ये क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि हमें तो क्रिटिकल पॉइंट भी तो निकालने पड़ेंगे ना. तो देखिए इसका डिसीजन कैसे लेंगे, आराम से समझना. यहाँ पे लॉग पे क्या बेस लगा हुआ है, प्लीज टेल मी, क्या बेस लगा हुआ बेटा? 2. मुझे बताइए सर व्हाट इज, क्वांटिटी क्या है? ये बड़ा होगा लॉग वाली टर्म. नहीं, अब चेक करके बताते हैं, जरा ध्यान से देखना. लॉग बेस 2 ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है. व्हाट इज लॉग बेस 2 ऑफ 2? 1. अब एक बात बताओ, ये 4/3 2 से तो कम है, आप ही बताओ. यस सर. 4/3 इज लेस देन 2. और एक बात बताइए, लॉग बेस्ड लॉग फंक्शन क्या क्या करता है, कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो लॉग बेस 2 ऑफ 4/3 इज लेस देन लॉग बेस 2 ऑफ 2. तो ये किसके बराबर है? 1. तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है? 1 से छोटी है. प्लीज टेल मी. समझ में आ गया डिसीजन कैसे लिया? ओके. यस सर. So minus infinity to plus infinity. Now let us plot these points. We have log base 2 of 4/3. Okay. And then we have 1. Okay. अब हमें साइन चेक करना होगा. साइन चेक कर लेते हैं. कैसे करेंगे साइन चेक? हाँ जी, एक काम करिए, 1 के राइट में कोई भी पॉइंट उठा के डाल दीजिए. चलो 2 ही डाल दीजिए फॉर इंस्टेंस. सपोज इफ आई पुट 2, दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. व्हाट अबाउट दिस? ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव साइन. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. तो फंक्शन कहाँ, यस सर. फंक्शन इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू log बेस 2 ऑफ 4/3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. वेयर इट इज डिक्रीजिंग? It is decreasing from log base 2 of 4/3 to 1. Is that okay? So it is a good question just to check your abilities, okay, that how you will handle the terms. Okay, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, खाली ठीक से हैंडल करना आना चाहिए. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा. आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन ये है, fx is equals to minus sine cube x plus 3 sine square x प्लस 5, और इंटरवल दे रखा है -π/2 से π/2. द क्वेश्चन इज, अगेन वी हैव टू सेपरेट द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके, नाउ सी, पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं एंड सी व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. f dash x will be having -3 sine square x cos x plus 6 sin x cos x. Is that okay beta? So we can have 3 sin x cos x common, so we'll have minus sin x plus 2. अब जरा एक काम करिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए.
ये है 0 से π/2 और ये है -π/2। तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। तो यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। प्लीज टेल मी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस। अब cos x फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी तो पॉजिटिव है ही, तो डिसीजन कहाँ से मिलेगा? sin x। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। तो यानी कि sin x cos x, 3 sin x cos x इक्वल्स टू 0, आइदर sin x इज इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू 0। sin x 0 होगा तो x 0 आएगा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में होगा। ये 0 होगा तो π/2 आएगा, π/2 डोमेन में नहीं है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आर माइनस π/2 प्लस π/2 एंड 0। अब आप बताइए, 0 से π/2 में सारा का सारा क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि sin x पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना, -π/2 से 0 बेटा। इट इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर you can say that function is increasing on open interval 0 to π/2 and decreasing on -π/2 to 0. I hope it is clear बेटा। क्लियर हुआ? हाँ जी। यस सर। Now we have one more question. Now see, of this category trigonometric functions के थोड़े कुछ questions। क्वेश्चन है fx is equals to tan inverse sin x plus cos x and x belongs to 0 to 2 पाई। यहाँ हमें इंटरवल सेपरेट करने पड़ेंगे, करते हैं। देखिए, लेट अस डिफरेंशिएट इट। दैट इज 1 ओवर 1 प्लस sin x plus cos x whole square. Is that okay? Now when we differentiate it, I will be obtaining cos x minus sin x. अब एक बात बताइए, ये डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है बेटा, होगा ना? प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें न्यूमरेटर से मिलेंगे। ये 0 होगा, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू sin x होगा, यानी कि tan x इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब जो वैल्यू है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है? एक तो ये π/4 होगा, और नेक्स्ट बता सकते हो क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज टेल मी व्हाट वी नीड टू डू। पाई प्लस π/4। सो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स आर π/4 एंड 5π/4। आई होप इट इज ओके। तो अब हम साइन स्कीम देखेंगे। ये है 0, ये है π/4, फिर है 5π/4 और फिर आपके पास है 2 पाई। अब मुझे एक बात बताइए, 0 से π/4 में मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू π/4। cos x बड़ा होता है sin x की, क्योंकि ग्राफ ऐसे चलता है और cos x का ऊपर होता है। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस प्लस। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ हुआ? इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 union 5π/4 to 2 pi and decreasing on π/4 to 5π/4। I hope it is okay। क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी। प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं और उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दैट इज ए गुड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। fx is 2 times of log base e of mod x minus 1 minus x square plus 2x plus 3 and what is the domain? Can anybody tell me what should be the domain? Please do reply। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या आएगी? जल्दी बताइए।
ये तो पोलिनोमियल है, सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए, खाली लॉग पे फोकस करना चाहिए। और लॉग पे मैंने मॉडुलस लगा दिया। सिर्फ एक पॉइंट हमें प्रॉब्लम दे सकता है, x इक्वल्स टू 1। कैन वी से दैट, क्योंकि log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो डोमेन क्या आ गई, r-1 आ जाएगी ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा पहले डोमेन पे अटैक करिएगा। अच्छा, अगर अब मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे रहा हूं, y इज इक्वल टू log बेस e ऑफ मोड x, इसकी डोमेन क्या आएगी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? R minus 0. ओके, कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस? याद करिए हमने जब ग्राफिंग की क्लास ली थी, log x का ग्राफ ये बनता है ना, 1 से पास करता है, और log mod x क्या बन गया, इवन फंक्शन, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। इज दैट ओके? ये किसका ग्राफ है? अब एक बात है, ये सवाल उठता है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे? माय क्वेश्चन इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0? यस। कैसे पता पड़ रहा है बताइए जरा मुझे, बिकॉज देर इज अ नो वर्टिकल टेंजेंट। चलो एक काम करते हैं, log mod x का डेरिवेटिव निकाल के दिखा देते हैं आपको, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, y इज इक्वल टू log बेस e ऑफ mod x। आई शुड राइट दिस वे बेटा, ध्यान से देखिएगा, when x is positive and when x is negative. Is that okay beta? Please do reply. हाँ जी। Yes, sir. Now let us find its derivative. y dash क्या आएगा, 1 over x when x is positive, ये कितना आएगा, -1 over x into -1 when x is negative। अब बताओ क्या आ रहा है डेरिवेटिव, what we are obtaining, please tell me, can we say that the function is differentiable? Please tell me, function, Yes. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, कारण बता देता हूँ, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस नहीं है ना, क्योंकि डोमेन में नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो। बट हाँ, हम एक पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी है, तो वी आर जस्ट फाइंडिंग द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑल्दो द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भी आती है कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट? इट इज द पॉइंट वेयर आइदर फंक्शन, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, या तो एफ डैश सी 0 होगा और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट, देन सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log mod x, 1 अपॉन x। क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ जी। तो इस मोड से नहीं घबराना है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, चलो सीधा निकालते हैं यहाँ से, 2 अपॉन x माइनस 1। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई, +2। क्लियर है? हाँ जी, बोलो बेटा। Yes, sir. Clear. ओके, व्हाट आई विल डू हियर, आई एम टेकिंग 2 कॉमन and I'm also taking minus sign common from here. Now take the LCM. Can we write this way? Please do reply. हाँ जी बेटा, तो अब इसके फैक्टर बना लेंगे, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, बोलो। If I factorize it, so then I will be having 1 minus x, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, आई होप फैक्टर्स आर करेक्ट, बोलो बेटा। तो
तो माइनस साइन में कॉमन ले लूँ तो -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स ओवर x माइनस 1। क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ गए? 0 आ गया, 1 आ गया क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी नहीं है इस पॉइंट पे, देन 2 आ गया। तो 2 के राइट में क्या साइन आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बताइए, आसानी से हमारे पास इंटरवल सेपरेट हो गए। प्लीज टेल मी बेटा, इंक्रीज कहाँ कर रहा है? -∞ टू 0, यूनियन 1 to 2। डिक्रीज कहाँ कर रहा है वो भी देख लीजिए, वेयर इट इज डिक्रीजिंग? 0 to 1, यूनियन 2 to infinity। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके। ओके, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है cos पाई ओवर एक्स। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? पहले मुझे बताइए, व्हाट इज द डोमेन? कैन वी से दैट r माइनस 0 विल बी द डोमेन? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो अब हमें क्या करना है? इसके लिए इंटरवल निकालने हैं वेयर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऐसे फंक्शन को कैसे करेंगे हैंडल? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए, लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई ओवर एक्स, और पाई ओवर एक्स का क्या आएगा बेटा? माइनस पाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया पाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई ओवर एक्स। अब ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, कह सकता हूँ। हाँ जी बेटा। अब हमें ये बताइए, एफ एक्स कब इंक्रीज करेगा? एफ एक्स विल इंक्रीज इफ दिस साइन पाई ओवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये कहना चाहिए मुझे। इफ आई टेक दिस एज माई थीटा, I should say that my sin theta should be greater than 0. Now sin theta is greater than 0. When it is greater than 0, definitely this theta must lie in which interval? 0 to pi. Can we say like that? Please tell me. Sir. Okay. Now please tell me, uh, this function is a periodic function. हाँ जी बेटा. There are infinitely many intervals where the sin theta will be more than 0. Can we say like that? Yes, sir. और मैंने क्या बोला था कि बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन अपना नेचर रिपीट करता है, और हम क्या करेंगे, यही सेम लेंथ इस पूरे में क्या ऐड कर दूंगा? 2k पाई। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। बिकॉज दीज आर कोटर्मिनल्स एंगल्स, दे आर इन्फाइनेटली मैनी कोटर्मिनल्स एंगल्स। ओके, नाउ दैट इज 2k पाई थीटा, and I can take pi common, so 1 plus 2k. Now what is theta? Please tell me beta, what is theta here? Theta is pi over x. Please tell me beta, यही है ना? Yes, sir. So this pi will get cancel. Okay, so 1 over x इसमें आ रहा है, तो x क्या किस में आएगा? We will take reciprocal of this, so 1 by 2k is greater than x greater than 1 over 2k plus 1. What is k here? K belongs to set of integers. So now how will allocate the interval? So my x belongs to, there will be a union of all these intervals. K belongs to z, one open interval 1 over 2k plus 1 comma 1 over 2k. Is that okay beta? Clear है वाली बात? Please do reply. हाँ जी। Yes. अच्छा, अब डिक्रीज कब करेगा? एफ एक्स विल डिक्रीज जब आपका थीटा पाई और 2 पाई के बीच में लाई करेगा, बट दे आर इन्फाइनेटली मैनी कोटर्मिनल्स एंगल्स, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 2k पाई. Okay, so when I add 2k pi,
सो आई विल बी ऑब्टेनिंग 2k प्लस 1 पाई, कह सकता हूँ ये बेटा. एंड व्हाट इज थीटा? पाई ओवर एक्स. And when we add 2k plus pi, that is 2k plus 2 pi. So this pi will get cancelled. Can we say like this? Please tell me. And when we take reciprocal, 1 over 2k plus 1 is more than x and more than 1 over 2k plus 2. So where x will belong? X will belongs union of these infinite intervals. K belongs to z. That is 1 over 2k plus 2 comma 1 over 2k plus 1. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? Yes, sir. तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. अब पेपर में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको इंटरवल, क्योंकि बच्चा तो वो पाई की टर्म में भी इंटरवल देंगे बेटा, बट लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. देखो यहाँ सिर्फ इतना दे के छोड़ दिया, यानी कि हमें उसकी पूरी डोमेन में बात करनी है. तो वी हैव टू फाइंड ऑल इनफाइनाइट सच इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी. समझ में आ गई बात? हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो हमें ये सारे इंटरवल्स मोनोटोनिसिटी के निकालने. एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. वी हैव वन मोर गुड प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज gx is defined as fx plus f of 1 minus x, and they have given f double dash x greater than 0 for all x belongs to 0 to 1. The question is find the intervals where gx is increasing and decreasing in 0 to 1. ये क्वेश्चन है. तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है. क्या दे रखा है बता सकते हो? अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग. प्लीज टेल मी, कह सकता हूं मैं? भाई एफ एक्स इंक्रीज होने के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है. अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा. कह सकता हूं ये वाली बात? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो अब जरा ध्यान से देखिएगा. वी विल जस्ट एनकैश दिस इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज जी डैश एक्स? दैट इज एफ डैश एक्स प्लस, इनफैक्ट माइनस आ जाएगा. समझ में आ रहा माइनस क्यों आ रहा बेटा? चेन रूल की वजह से, है ना. अब आप बताइए gx कब इंक्रीज करेगा? gx विल इंक्रीज व्हेन g डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस x, तब इंक्रीज करना चाहिए. अब मुझे एक बात बताइए, सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अब मुझे बताइए अगर f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं? कैन वी से दैट x इज मोर देन 1 माइनस x? प्लीज डू रिप्लाई. कह सकता हूं? हाँ जी, इज इट ओके? Yes, sir. तो 2x इज मोर देन 1, x इज मोर देन 1 बाई 2. ये तो इंटरवल अपने आप ही बन गए, यानी कि अब डिक्रीज के लिए तो मुझे सोचना ही नहीं है. तो व्हाट आई विल डू, ये 0 था, ये 1 बाई 2 आ गया, तो और ये 1 आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. तब आपने क्या देखा कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑन 1 बाई 2 कॉमा 1. एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग? इट इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू हाफ. आई होप इट इज क्लियर बेटा. हाँ जी बेटा बोलो. Yes, sir. अब फंक्शन आया, अब हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गए और उनके इंटरवल्स निकालने होंगे. उनको कैसे हैंडल करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर मोड एक्स. तो क्लियरली अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है. जरा ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आएगा e की पावर x का ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी. व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये आएगा e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे जाएगा? लाइक दिस.
तो ये ग्राफ बनेगा। तो क्लियरली अगर आप इस ग्राफ से देखें, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। ये तो ज्योमेट्री से दिख रहा है ना बेटा, दैट इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इज दैट ओके? चलो एल्जेब्रिकली भी हैंडल कर लेते हैं। एफ एक्स को मैं ऐसे लिख लूंगा, e raised to power x whenever x is greater than equal to 0 minus e raised to power minus x when x is less than 0. Are you getting this? Now clearly this quantity, this will be positive, and this quantity when x less than 0 this quantity is negative. साफ दिख रहा है बेटा? तो यानी कि आपने क्या देखा, f dash x is less than 0 for x less than 0 and f dash x is greater than 0 for x greater than 0. Is that okay? Please do reply. हाँ जी, जल्दी बोलिए बेटा। Yes. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखिएगा। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होंगे लेकिन हमें इंटरवल्स निकालने होंगे, है ना। मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 2। ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, जल्दी बताइए, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, जल्दी बोलिए। 0 पे एंड 2 पे, क्योंकि मोड एक्स कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बोलो। So 0 or 2. जहां मॉडुलस 0 होता है ना। तो एक काम करते हैं, विल ट्राई टू मेक इट्स ग्राफ फर्स्ट। ओके, कैन वी राइट दिस एज, what are the critical point to handle this modulus? 0 and 2. Now please tell me, when x is less than 0 what will happen? Please tell me, both of this modulus will be negative or not? Please tell me। हाँ जी बेटा, ये क्या आ जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 2, सो वी हैव 2 minus 2x. Is that okay? Please do reply। हाँ जी। And when my x is greater than or equals to 0, minus x plus 2. Yes. क्या, Okay, sir. ठीक है. and less than equal to 2, so then what will happen? uh, this will be positive, that is x, and this will be negative, so minus x plus 2, so this will be the value only 2। okay, so when x is more than 2 तो क्या आएगा, 2x minus 2। हाँ जी, एक काम करिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, बिगर डेरिवेटिव के निकालते हैं। बता दूं कैसे? ये एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जल्दी बताइए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? Negative. तो यहाँ तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव स्लोप है। और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, है ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ग्राफिकली भी बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, ये बताइए। ये फंक्शन अगर मैं ये 0 ले लूँ, ये 1, ये 2, this is 1, this is 2, this is 3, and this is -1, -2, -3. Now how will trace this line 2 minus 2x? But certainly when your x is 0, so intercept will be 2, और लाइन यहाँ ऊपर से आएगी, डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। Now between 0 and 2 the function is totally constant like this, और इसके बाद स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? दिस विल बी द ग्राफ। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. तो कैन वी से दैट माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? प्लीज टेल मी। हाँ जी, जल्दी बोलिए। Yes, sir. और
ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी पे कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? हाँ जी, जल्दी बोलिए, Yes, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ अगर यहाँ पे खाली इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और उसके निकालने तो ये तो हमारे पास ऐसे निकल गए, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक फंक्शन फिर कैसा है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन यह हैव infinitely many points which are forming the intervals. You are getting the example or not? Please tell me. यहाँ पे हाइट कांस्टेंट हो रही है ना? हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई। Yes. और अगर मैं ये कह दूं कि 0 से इन्फिनिटी पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, आर यू गेटिंग दिस? So depending on the context that what they are asking, accordingly you will give the answer. Okay, please tell me. हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ फंडा ये? बताओ बेटा। Okay, now we have the problem of type 2, finding unknown using monotonicity. Finding unknowns using monotonicity. मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 increases for all x belongs to 1 comma 2. The question is find the values of k. Find the values of k. इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं, और सबके लिए एक ही अप्रोच लगेगी. विल यूज ओनली द वन अप्रोच. ओके, इन्होंने क्या कह रखा है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है. इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. व्हाट इज एफ डैश एक्स? प्लीज टेल मी. 2x प्लस k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2. अब यहां बच्चा गलती करता है. हम क्या करेंगे, आराम से समझना. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, अगर इस k को मैं यहां में हाईलाइट कर रहा हूं और सबके लिए यूनिक अप्रोच लगेगी. अगर इस k को माइनस 2x की ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी बड़ा कर दूं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी. आराम से सुनिएगा. मेक दिस k ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ माइनस 2x. और कहां पे? ऑन दिस इंटरवल. तो पहले हम क्या करेंगे, विल फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ माइनस 2x. ठीक है, प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो मुझे बताइए, माइनस 2x कैसा है? इज डिक्रीजिंग फंक्शन. प्लीज टेल मी. अब x आपका 1 और 2 के बीच में है, तो मुझे बताइए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की टोटली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. नाउ अगर अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सो वी हैव माइनस 2x greater than minus 4 and less than minus 2. Now please tell me what is the greatest value? तो हमें क्या करना चाहिए? k must be क्या करना चाहिए आप बताइए जल्दी से. k must be greater than or equals to minus 2. तो you can take any value of k from minus 2 to infinity. The function will always remains increasing. Are you getting this? Please tell me. हाँ जी, बोलो Yes, बेटा, sir. समझ में आई बात? हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का. देखिए, okay, the question is, if fx is such that f dash x is equals to log base 1 by 3 log base 3 of sin x plus a decreases in its domain, find the values of a.
क्या क्वेश्चन है? फंक्शन डिक्रीज करा तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। हाँ जी, प्लीज टेल मी। तो क्या आएगा? Yes, sir. log बेस 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताइएगा, अगर जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता था इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, और जब ऐसे होता था बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होता था, याद है ये ग्राफ? log बेस a ऑफ x a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, याद है ना? डिक्रीज करता था, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो यहाँ बेस कितना है? 1/3। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3 raised to power 0। प्लीज डू रिप्लाई, कैन वी से लाइक दैट? sin x plus a is greater than or equals to 1। what should I write? then sin x plus a, अब ये बेस 3 है, ये तो इंक्रीजिंग होता है, inequality will remain same, greater than or equal to 3 raised to power 1। so then I should write sin x plus a greater than or equal to 3। so my a is greater than or equal to 3 minus sin x। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज टेल मी। a को क्या करना पड़ेगा? a की वो वैल्यू लीजिए जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी बड़ी हो। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस? 4 आएगी। हाँ जी, Yes, sir. तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स की लीस्ट वैल्यू आएगी -1, तभी ये ग्रेटेस्ट होगा। तो यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। समझ में आ गई बात? बोलो, इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यानी जब उसकी जो भी आ रहा है एक्सप्रेशन, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू से उसको बड़ा करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आई होप इट Yes, इज sir. क्लियर। ठीक है ना? ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वी विल बी स्टार्टिंग विद मैक्सिमम एंड मिनिमम। आई होप ये चैप्टर, ये वाला जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा, ये अच्छे से क्लियर हो गया है। हाँ जी बेटा, Yes, sir. ठीक है ना? तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, तो इजी है। तो मेन है कि आपके प्रीवियस फंक्शंस के कंसेप्ट